Hello everyone, Neha here. So, in the last video, we have completed chapter 2, exercise 2.3, question number 1 and question number 2. Now we will start exercise 2.3, question number 3. So, let's start now. Question is, multiply the following fractions. We have to simply multiply the fraction. So let's start first part. 2 upon 5 into 5 1 upon 4. So 2 upon 5 into, first we will change 5 1 upon 4 into improper fraction. And how we change into improper fraction? First change it. 5 4s are 20. 20 plus 1, 21. So it means 21 upon 4. So 2 upon 5 into 21 upon 4. अब आप ये देखिए क्या कैंसिल हो रहा है. इट कैन बी कैंसिल. हाँ कैंसिल हो रहा है. कैसे कैंसिल हो रहा है? 2 1 द 2, 2 2 द 4. अब ये कैंसिल हो सकता है? अब नहीं हो सकता. नाउ सिंपली मल्टीप्लाई 1 into 21. 1 21 द 21 and 5 2 द 10. So we will get 21 upon 10. अब 21 upon 10 कैसा फ्रैक्शन है आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो आपको किस में चेंज करना है? मिक्स में करना है. जब आप मिक्स में चेंज करेंगे तो आपको डिवाइड करना है. डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 10 2 द 20. व्हाट इज लेफ्ट? 21 minus 20. 1 is left. And how you will write this? आप कैसे लिख सकते हैं? Quotient remainder upon divisor. It means quotient remainder upon divisor. Quotient remainder upon divisor. Quotient क्या है यहाँ पे? 2. रिमाइंडर क्या है? 1. और डिवाइजर क्या है आपका? 10. तो 2 1 upon 10. और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये क्या बन रहा है यहाँ पे? आप ये देखिए v. आप कैसे लिखते हैं? v की फॉर्म में, अपोजिट v की फॉर्म में. अंडरस्टूड. ओके, कम ऑन. सेकेंड पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट इज 6 2 upon 5 into 7 upon 9. Again change this fraction into improper first. So what will come? 6 5s are 30. 30 plus 2, 32. तो 32 upon 5 into 7 upon 9. अब ये देखिए कैंसिल हो रहा है? नहीं कैंसिल हो रहा है. सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए. 32 into 7, 5 into 9. तो 32 into 7 will be 224 and 5 9s are 45. Now again 224 upon 45 is a improper fraction. तो चेंज इनटू मिक्स. मिक्स में कैसे चेंज करेंगे? डिवाइड करके. 45 4s are 180. Then minus it, you will get 44. It means how you have to write it? Quotient remainder upon divisor. It means 44 upon 45. Come on, next part, third part. 3 upon 2 into 5 1 upon 3. Again change 5 1 upon 3 into improper form. So what will come? 5 3 the 15. 15 plus 1 will be 16. So it will be 16 upon 8. अब आप देखिए कैंसिल हो रहा है. कैंसिल हो रहा है. 2 1s are 2 और 2 8s are 16 और 3 1s are कैंसिल हो रहा है. यहाँ कैंसिल होने के बाद क्या बचा? ये 1 बचा. 1 into 8 8 और 1 into 1 will be 1 only. तो आपका ये आंसर क्या आया? 8 upon 1. और 8 upon 1 को आप और कैसे लिख सकते हैं? Simply 8 also. Because every whole number is having the denominator as 1. So आप इसे 8 भी लिख सकते हैं. Come on, next part. Fourth part. Fourth part is 5 upon 6 into 2 3 upon 7. So again change into improper. It will be 7 2s are 14. 14 plus 3 will be 17. 17 upon 7. Now 5 17s are 85. 6 7s are 42. Now change into. Now you have to change into. Wait a minute. You have to change into mix. Mix में change करिए. Mix में कैसे change होता है? Mix में change करने के लिए 2 1 upon 42. You can see that here you can divide 42 2 the 84. 1 is left. So 2 1 upon 42. Come on, fifth part now. Fifth part is 3 2 upon 5 into 4 upon 7. So again change it. 3 5s are 15. 15 plus 2 17. 17 upon 5 into 4 upon 7. Simply आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए. So 17 4s are 68.
and 5 sevens will be 35. Again this is an improper fraction, change into mix, so it will be 35 ones are 35, then 68 minus 35 will be 33. Then how you have to write? Quotient remained upon divisor, it means 133 upon 35. Come on, next part now. 2 3 upon 5 into 3, change into improper, 5 to the 10, 10 plus 3 will be 13, so 13 upon 5 into 3. Now simply multiply the numbers, 13 3s are 39, 5 1s are 5. So again this is an improper, change into mix, 5 7s are 35, 39 minus 35 will be 44. So you will get quotient remainder upon divisor, it means 4 upon 5. Count 7th part now. 3 4 upon 7 into 3 upon 5. Again change into improper, 7 3s are 21, 21 plus 4 will be 25, तो 25 upon 7 will come. Now into 3 upon 5, अब कैंसिल कर दीजिए, 5 1 are 5, 5 5 are 25. अब सिंपल मल्टीप्लाई करिए, 5 3 are 15 and 7 1 are 7, so it will be 15 upon 7. अब 15 upon 7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपको किस में चेंज करना है? मिक्स में चेंज करना है. मिक्स में चेंज करने के लिए क्या करना है आपको? डिवाइड करना है. 7 2s are 14, 15 minus 14 will be, it will come 1. How you can write now? Quotient remainder upon divisor, 2 1 upon 7. Come on, question number 4 now. Question number 3 we have completed. All is of same part, सेम तरीके के थे. कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. विच इज ग्रेटर, हमें पता लगाना है इसमें से ग्रेटर कौन है. ठीक है, अब देखिए 2 upon 7 ऑफ 3 upon 5, 2 upon 7 ऑफ 3 upon 4 मीन पहले आपको इसे सॉल्व करना है. और का मतलब आपका ये ग्रेटर है, और का मतलब या आपका ये वाला पार्ट ग्रेटर है. 3 upon 5 ऑफ 5 upon 8. तो आपको क्या करना है? पहले आपको 2 upon 7 इंटू 3 upon 4 को सॉल्व करना है. फिर आपको 3 upon 5 ऑफ 5 upon 8 को सॉल्व करना है. फिर आपको कंपेयर करना है कि किसकी वैल्यू ग्रेटर है, कौन सा वाला पार्ट सॉल्व करने के बाद ग्रेटर आ रहा है. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो common solution of first part. So first we are solving 2 upon 7 of 3 upon 4. 2 upon 7 of 3 upon 4, 2 upon 7 into 3 upon 4. अभी कैंसिल हो रहा है, 2 1s are 2 और 2 2s are 4. So अब आपका क्या बचा कैंसिल होने के बाद? कैंसिल होने के बाद बचा 2 3s are या 2 3s are या 2 1s are 2 कैंसिल हो गया, और या 2 2s are 4 कैंसिल हो गया. तो क्या बचा यहाँ? 1 बचा. तो 1 3s are 3 and 7 2s are 14. तो हमारे ये पार्ट तो किस सॉल्व हो गया, एंड वी गॉट 3 upon 14. अब आप सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करिए. 3 upon 5 ऑफ 5 upon 8. जब आप इसे सॉल्व करेंगे 3 upon 5 इंटू 5 upon 8, तो देखिए आप 5 1s are 5, 5 1s are 5, तो कैंसिल हो गया. ठीक है, कैंसिल होने के बाद क्या बचा? 1 3s are 3 और 1 8s are 8, तो 3 upon 8. अब आपके पास दो फ्रैक्शन आए. कौन से फ्रैक्शन आए? 3 upon 14 आया इसे सॉल्व करके, और 3 upon 8 आया. इसमें आप कंपेयर करिए कौन सा वाला. अब ये कंपेयर करिए, इसमें कंपेयर कैसे करते हैं हम? अगर हमारा न्यूमरेटर्स भी अलग होते हैं और डिनोमिनेटर्स भी अलग होते हैं, तो हम कैसे कंपेयर करते हैं? डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं. लेकिन अगर हमारे न्यूमरेटर सेम होता है, आप यहाँ देखिए न्यूमरेटर सेम है. जब आपका न्यूमरेटर सेम है तो आप किससे कंपेयर करते हैं? डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर में क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ देखिए 14 8 में से आप ये देखिए आपके डिनोमिनेटर है. अब यहाँ देखिए आप 3 upon 14 ग्रेटर, यहाँ 3 upon 8 3 upon 14 से ग्रेटर होगा. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपका न्यूमरेटर सेम होता है तो अब हम डिनोमिनेटर से कंपेयर करते हैं, और डिनोमिनेटर से कंपेयर करने के लिए वैसे तो हमें पता है कि 14 8 से बड़ा होता है ना. लेकिन आपका जब न्यूमरेटर सेम हो तो आप कैसे कंपेयर करते हैं? डिनोमिनेटर में क्या देखते हैं? जो छोटा होता है वो ग्रेटर होता है. अब 14 और 8 में कौन सा ग्रेटर छोटा है, कौन सा स्मॉलर नंबर है? 8 ऑब्वियसली, तो 8 वाला बड़ा होगा. ये अपोजिट हो जाता है फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर सेम है. वैसे तो ऑब्वियसली हमें पता है 14 ग्रेटर होता है 8 से, लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर में कैसे देखते हैं? जो छोटा है वो बड़ा है.
इट मीन जो स्मॉलर है वो ग्रेटर वाला पार्ट हो जाएगा. ओके, सो इट मीन्स 3/8 आपका ग्रेटर किससे हो गया, 3/14 से. 3/8 ग्रेटर हो गया 3/14 से. आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो वी हैव कम टू नो कि 3/8 हमें 3/8 कौन सा फ्रैक्शन था, 3/8 किसका था, 3/8 ये, यानी कि ये वाला आपका फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से ग्रेटर है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. कम ऑन सेकेंड पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट में भी अब आपको पहले 1/2 को 6/7 से करना है, इसे कंपेयर करना है कि ये वाला फ्रैक्शन, ये वाला पार्ट, या 2/3 और 3/5 इसमें से कौन सा ग्रेटर है. तो अब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे. देखिए 1/2 ऑफ 6/7 जब हमने किया तो 1/2 इंटू 6/7 आ गया. अभी कैंसिल नहीं हो रहा, आप यहाँ कैंसिल हो रहा है, यहाँ कैसे कैंसिल हो रहा है पहले आप देखेंगे. कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, नहीं कैंसिल हो रहा है तो आप छोड़ देंगे, सिंपल मल्टीप्लाई. तो यहाँ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल क्या हो रहा है, 2 1 2, 2 3 6. तो आपको क्या बचा, 3/7. इट मीन्स 3/7. कम ऑन second part of this question, it means 2/3 of 3/7. 2/3 into 3/7. now अभी देखिए कैंसिल हो, 3 1 3, 3 1 3. आपका क्या बचा, 2 1 2 and 1 into 7 will be 7. तो 2/7. अब आपको कंपेयर करना है कि कौन सा ग्रेटर. ये 3/7 आ गया इसे सॉल्व करके, और दिस पार्ट को सॉल्व करके हमें क्या मिला, 2/7. अब आप कंपेयर करिए जरा, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर से कंपेयर करते हैं कौन सा ग्रेटर है. अब ऑब्वियसली 3 ग्रेटर है 2 से, सो 3/7 विल बी द ग्रेटर देन 2/7. अब 3/7 किससे बना था, आप देखिए 3/7 का कौन सा पार्ट था क्वेश्चन में, ओरिजिनल कौन सा पार्ट था, 1/2 ऑफ 6/7. ठीक है, ये वाला पार्ट था आपका 3/7 का. तो इसका इट मीन्स 1/2 ऑफ 6/7 विल बी ग्रेटर टू 2/3 ऑफ 3/7. We have completed question number 1, 2, 3 and 4. Now question number 5 we will continue in the next video. Thank you.